Welcome to some basic concept of chemistry. In last lecture, students हम study किए थे law of conservation of mass, law of definite proportion and law of multiple proportion. एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं. Define law of conservation of mass, जो हमारी बुक में नहीं था लेकिन आपको ऐड करना है. क्या लिखा था मैंने यहाँ पे? Matter neither be created nor be destroyed. That is law of conservation of mass. Second था law of definite proportion. उसमें simple statement था a given compound always contain exactly the same proportion of element by weight. A given compound always contain exactly the same proportion of element by weight. और लास्ट में कहा था the law of multiple proportion, if two elements can combine to form more than one compound, the masses of one element that combines with a fixed mass of other element are in the ratio of small whole numbers. Okay, are in the ratio of small whole numbers. चलो आगे बढ़ते हैं. आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन गैल्यूसेक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम. ओके, वॉल्यूम पर लॉ है गैल्यूसेक का. साइंटिस्ट का नाम है गैल्यूसेक. सो 1808 में गैल्यूसेक साइंटिस्ट ने लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम रिप्रेजेंट किया था. उन्होंने ऑब्जर्व किया, he observed that when gases combine or produced, when gases combine or produced in a chemical reaction, they do so in a simple ratio by volume, provided all gases are same temperature and pressure. At same temperature and pressure. मतलब कहना वो चाहते थे कि अगर टेम्परेचर और प्रेशर सेम रखे कोई भी रिएक्शन में, तो उसमें अगर कोई गैसेस कंबाइन होते हैं या कोई गैसेस प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन वो सिंपल रेशियो में ही प्रोड्यूस होते हैं. ओके, तो कोई भी रिएक्शन उसके कंपोनेंट सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे रिएक्शन में पार्टिसिपेट हो तो वो सिंपल रेशियो में ही प्रोड्यूस होते हैं और सिंपल रेशियो में ही कंबाइन होते हैं. दैट इज द गैल्यूसेक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम. कौन सा लॉ? गैल्यूसेक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम. सो दिस लॉ वाज गिवन बाय गैल्यूसेक इन 1808. ही ऑब्जर्व्ड दैट व्हेन गैसेस कंबाइन और आर प्रोड्यूस्ड in a chemical reaction, they do so in a simple ratio by volume, provided all gases at same temperature and same pressure. समझ में आया? स्टेटमेंट को अगर नॉर्मल मोड में लिखें तो लिख सकते हैं कि if all gases are at same temperature and pressure, so in a chemical reaction the gases are combined or are produced in a simple ratio. In a simple ratio. Okay, if all gases are at same temperature and pressure, so in a chemical reaction gases combined or gases produced are in simple ratio. Okay, simple ratio में ही combine और produce होते हैं. उसका एग्जाम्पल लेते हैं. If we take 100 ml of hydrogen and 50 ml of oxygen, तो वो बनाएगा 100 ml of water vapor. If we add 100 ml of hydrogen and 50 ml of oxygen, it gives 100 ml of water vapor. जैसे इक्वेशन ले लो, इस इक्वेशन में आप देख सकते हो 2H2 plus O2 it gives 2H2O. बराबर? ये इक्वेशन से ही आपको पता चलेगा सिंपल रेशियो क्या होता है.
यहाँ आप देख सकते हो कि 2H2 plus O2 gives 2H2O, तो उनका मोल रेशियो क्या है? 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन एंड गिव्स 2 मोल ऑफ वाटर। फिर से एक बार, 2 moles of hydrogen and 1 mole of oxygen combines and gives 2 moles of water। तो इसमें मोल रेशियो क्या है? 2:1:2 है। ओके, सेम वॉल्यूम रेशियो होगा, तो इसलिए यहाँ पे लिखा है कि अगर मैं हाइड्रोजन 100 ml लेता हूँ और ऑक्सीजन 50 ml लेता हूँ तो उससे 100 ml वाटर बनता है। इफ वी टेक 100 ml हाइड्रोजन and 50 ml oxygen, it gives 100 ml water। ओके, तो यहाँ पे हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन रेशियो क्या हुआ? 100:50, या फिर हम कह सकते हैं 2:1। तो वॉल्यूम रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन which combine together, it is respectively 100 and 50 ml। Bear a simple ratio 2:1। इतना ही नहीं, यूज्ड और प्रोड्यूस्ड गैस की बात करें तो मुझे ऑक्सीजन का वाटर वेपर से रेशियो चाहिए, तो होगा 50:100, तो वो भी सिंपल रेशियो में है, क्या होगा? 1:2। ओके, तो वही तो कह रहे हैं कि भी कंबाइन हो रहे हो गैस या प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनका रेशियो सिंपल होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड गैल्यूसेक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। Gay-Lussac's discovery of integer ratio in volume relationship is actually the law of definite proportion by volume। Actually Gay-Lussac ने जो ये लॉ दिया था गैसियस वॉल्यूम का, उस लॉ को कह सकते हैं लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन बाय वॉल्यूम। बच्चों हमने आगे पढ़ा था लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन, वो बाय मास था, जिसमें कॉपर क्यूप्रिक कार्बोनेट का एग्जाम्पल था। दैट इज लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन बाय मास। लेकिन अगर हम गैल्यूसेक्स लॉ को सोचें तो गैल्यूसेक्स लॉ को भी वही नाम दिया जाता है, लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शंस बाय वॉल्यूम। ओके, सो आगे जो पढ़े थे वो क्या था? लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन विथ रिस्पेक्ट टू मास। So students, this is very simple question, Gay-Lussac's law of gaseous volume। बराबर 1808 में गैल्यूसेक ने कहा कि अगर सब गैसेस सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे हैं तो ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन में कंबाइन होते हुए या प्रोड्यूस होते हुए सभी गैसेस वॉल्यूम के हिसाब से सिंपल रेशियो में होते हैं। फिर ये इक्वेशन से एग्जांपल दे दो, 2H2 plus O2 it gives 2H2O, जिसमें 100 ml हाइड्रोजन और 50 ml ऑक्सीजन मिक्स होके वाटर बनाता है। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन विच कंबाइन? 100:50, सो वी कैन से दैट 2:1। ओके, गैल्यूसेक्स लॉ को दूसरा कौन सा नाम दिया गया? It is called law of definite proportion by volume। It is known as law of definite proportion by volume। चलो आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। If 10 volumes of dihydrogen gas reacts with 5 volumes of dioxygen gas, how many volumes of water vapor would be produced? Okay, 10 वॉल्यूम हाइड्रोजन गैस का है, वो 5 वॉल्यूम ऑक्सीजन गैस से जुड़ के कितना वॉल्यूम वाटर बनाएगा? तो बच्चों पहले आपके पास इक्वेशन होनी चाहिए, और इसीलिए मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में इक्वेशन से ही वॉल्यूम को एक्सप्लेन किया था। तो आप जानते हो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस रेशियो में वाटर बनाएंगे? 2:1:2। क्लियर? ओके, वो बोल रहे हैं 2 वॉल्यूम combines with 1 वॉल्यूम, तो बनेगा वाटर कितना? 2 वॉल्यूम, क्योंकि मोल रेशियो है 2:1:2। अब यहाँ पे सिर्फ डिजिट्स रखने हैं बच्चों। हाइड्रोजन की बात करें तो वो 10 वॉल्यूम है, तो यहाँ हाइड्रोजन 10 है, उसमें 5 वॉल्यूम ऑक्सीजन ऐड हुआ, तो ऑक्सीजन कितना हुआ? 5, तो रेशियो क्या होगा? 10:5, मतलब 2:1।
10:5 मतलब 2:1। क्लियर? तो फिर आप देख सकते हो रेशियो था 2:1:2, तो आप ट्राई कीजिए तो पता चलेगा 10:5:10 आएगा। कितना आएगा? 10:5:10। हाइड्रोजन 2 मोल है तो पानी भी 2 मोल है, तो हाइड्रोजन 10 मोल लिया तो वाटर भी कितना होगा? 10 मोल। वाटर कितना होगा? 10 मोल। सो दिस इज नोन एज रिएक्शन। उसके हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बराबर। सो डाई हाइड्रोजन विथ ऑक्सीजन गिव्स वाटर, तो रेशियो ऑफ 10:5:10। So your answer is 10 volume water vapor. Okay. Now our next question is explain Avogadro's law with figure. एवोगैड्रो का लॉ डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करना है। ओके, तो एक्चुअली 1811 में साइंटिस्ट एमेलियो एवोगैड्रो, इसका पूरा नाम है एमेलियो एवोगैड्रो, proposed that equal volumes of gas at the same temperature and pressure should contain equal number of molecules. Should contain equal number of molecules. तो क्या होगा? In 1811, Avogadro proposed that equal volumes of gases at the same temperature and pressure should contain equal number of molecules. Clear? ओके, मतलब अगर टेम्परेचर और प्रेशर सेम हो और वॉल्यूम भी सेम हो तो कोई भी गैस हो उसमें नंबर ऑफ मोलेक्यूल्स कैसे होते हैं? सेम। जैसे एग्जांपल दूं, समझोगे तो वर्ड समझ में आ जाएंगे। जैसे कोई रूम है, आप जिस रूम में बैठे उसकी बात करें, वहां मैंने हाइड्रोजन सेम टेम्परेचर प्रेशर पे हाइड्रोजन गैस भरा, तो हाइड्रोजन गैस पूरा रूम जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगा। उसी टेम्परेचर प्रेशर पे मैंने उसमें ऑक्सीजन भरा, बराबर, हाइड्रोजन निकाल के ऑक्सीजन भरा, फिर उसी में वाटर वेपर भरता हूँ सेम कंडीशन में, उसी में मैं कार्बन डाइऑक्साइड भरता हूँ। तो कोई भी गैस अगर मैं सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर पे सेम वॉल्यूम में भरूंगा तो केमिस्ट्री ये कहता है नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स आर सेम। तो हाइड्रोजन भले उसका मास कम है, वॉल्यूम छोटा है, फिर भी नंबर ऑफ हाइड्रोजन मोलिक्यूल सेम होंगे। इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑक्सीजन, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ वाटर वेपर मोलिक्यूल। तो कोई भी गैस की क्वालिटी हो, लेकिन अगर टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम सेम है तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स भी कैसे होंगे? सेम। इसलिए एमेलियो एवोगैड्रो का जो प्रिंसिपल है उसको याद करके बोलिए। In 1811, Avogadro proposed that equal volumes of gases at same temperature and pressure should contain equal number of molecules. फिर से एक बार, equal volume of gases at same temperature and pressure should contain equal number of molecules. Last time, equal volumes of different gases at the same temperature and pressure should contain equal number of molecules. Should contain equal number of molecules. Clear everyone? Okay. Avogadro made a distinction between atoms and molecule which is quite understandable in present time. सबसे पहली बार एवोगैड्रो साइंटिस्ट ने एटम और मोलेक्यूल के बीच का डिफरेंस बताया था, जो हम अभी समझते हैं। ओके, आप जानते हो 1811 में तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन किसी का भी डिस्कवरी नहीं हुआ था। उस टाइम पे तो सबको इतना पता था एटम इज इनडिविजिबल, बराबर। तो केमिकल बॉन्डिंग क्या है, मोलेक्यूल क्या है, उस टाइम पे जनरली इतना कंसेप्ट नहीं था। तो अगर मैं एक रिएक्शन की बात करूं, जैसे आप डायलॉग बॉक्स में देख सकते हो 2H2 plus O2 2H2O, तो हम आज ये रिएक्शन पढ़ पा रहे हैं, उसका श्रेय जाता है एवोगैड्रो को, क्योंकि पहले साइंटिस्ट बहुत सारे थे लेकिन इतना कंसेप्ट नहीं था। आपको मैं बताऊं तो डाल्टन साइंटिस्ट और दूसरे वाले सभी साइंटिस्ट ऐसा सोचते थे
कि एलिमेंट जो होते हैं ना वो एटॉमिक फॉर्म में ही होते हैं, मोलेक्यूल फॉर्म में नहीं हो सकते। डाल्टन एंड अदर्स बिलीव दैट that time atoms of the same kind cannot combine and molecules of oxygen and hydrogen containing two atoms did not exist. उस टाइम पे डाल्टन और अदर साइंटिस्ट ने ऐसा मान रखा था कि भाई एलिमेंट एटॉमिक फॉर्म में होते ही नहीं है, सॉरी एलिमेंट्स एटॉमिक फॉर्म में ही होते हैं, मोलेकुलर फॉर्म में नहीं हो सकते। जैसे मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो O2 मोलेक्यूल एलिमेंट ही कहलाता है, हाइड्रोजन की बात करूं तो H2 मोलेक्यूल एलिमेंट ही कहलाता है। लेकिन उस टाइम पे ऐसा माना जाता था ऑक्सीजन माने सिंगल ऑक्सीजन एटम का ग्रुप, हाइड्रोजन माने सिंगल हाइड्रोजन एटम का ग्रुप। लेकिन ये जो भ्रम था लोगों का वो दूर किया साइंटिस्ट एवोगैड्रो ने इस लॉ से, एवोगैड्रो प्रिंसिपल से। So Avogadro is the first scientist who have distinguished between atoms and molecule, which is quite understandable in the present time. अभी आप जिसको इजीली समझ सकते हो वो एवोगैड्रो की देन है। फिर उन्होंने क्या किया, एवोगैड्रो का एक्सपेरिमेंट ऐसा था, उन्होंने सेम टेम्परेचर और प्रेशर लिया और सेम वॉल्यूम के कंटेनर्स लिए। उन्होंने 2 वॉल हाइड्रोजन लिया। एवोगैड्रो ने क्या किया, 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, मतलब 2 वॉल हाइड्रोजन लिया और उसकी 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन के साथ ट्रीटमेंट की। सो 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन हो गया 2 वॉल। उसमें आप देख सकते हो हाइड्रोजन मोलेकुलर फॉर्म में है, एटॉमिक फॉर्म में नहीं है। और उसकी 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन से ट्रीटमेंट की। So you can see this is oxygen molecule. तो 1 + 1 + 1 क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए ना। फिर भी केमिकल रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री के हिसाब से आप देख सकते हो प्रोडक्ट कौन सी है, वाटर। सो वी गॉट वाटर एज अ प्रोडक्ट, लेकिन वो 2 वॉल्यूम मिलती है। कितना वॉल्यूम मिलती है, 2 वॉल्यूम। ओके, तो आप देख सकते हो 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन and 1 volume of oxygen gives 2 volume of water vapor. It gives 2 volume of water vapor. Clear? तो इस एक्सपेरिमेंट को साइंटिस्ट ने अच्छी तरह से प्रूव किया और उस पर से उन्होंने लॉ लगाया कि इफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम आर सेम, सो नंबर ऑफ मोलेक्यूल्स आर आल्सो सेम। ओके, तो देखो रिएक्शन की बात ये है, if we consider again the reaction of hydrogen and oxygen to produce water, we see that 2 volumes of hydrogen combine with 1 volume of oxygen. 2 volumes of hydrogen combine with 1 volume of oxygen to give 2 volume of water without leaving any unreacted oxygen. Without leaving any unreacted oxygen. ओके, आपने देखा 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन है और 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन है, मिक्स होके 2 वॉल्यूम वाटर वेपर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, 2 वॉल्यूम वाटर वेपर। ओके, अगर सेम वॉल्यूम, आप समझ लो मेरी बात, हाँ, अगर सेम वॉल्यूम में सेम नंबर ऑफ मोलेक्यूल नहीं होते, जैसे देख लो आप यहाँ पे देख सकते हो 1 वॉल्यूम में कितना हाइड्रोजन है, 5। यहाँ भी 1 वॉल्यूम में 5 हाइड्रोजन। 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन में कितना ऑक्सीजन है, 5 मोलेक्यूल। तो आपने देखा सभी का 1 वॉल्यूम लें तो नंबर ऑफ मोलेक्यूल कितने हैं, 1 2 3 4 5। ओके, अगर यहाँ भूल से भी 6 मोलेक्यूल होते ऑक्सीजन के तो प्रोडक्ट में ऑक्सीजन अनरिएक्टेड बचता ना। अगर हाइड्रोजन के मोलेक्यूल 5 की जगह पे 7 होते तो अनरिएक्टेड 2 मोल हाइड्रोजन गैस के यहाँ पे होते ना, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करें, मतलब 2:1 रेशियो में ट्रीट करें तो पूरा का पूरा रिएजेंट यूज आउट हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई मोलेक्यूल लेफ्ट बिहाइंड नहीं है,
मतलब सारे के सारे यूज हो गए, सो इसी रेशियो में मोलिक्यूल्स होने चाहिए। तो इस पर जो उनका कंक्लूजन था कि क्या कंक्लूजन था, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। इक्वल नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स होते हैं, बराबर। ओके, तो इसी डायग्राम को यहाँ पॉइंट में एक्सप्लेन किया गया है और उन्होंने समझाया कि क्यों एलिमेंट्स डायटॉमिक भी होते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अबाउट डाल्टन्स एटॉमिक थियरी। बराबर, ये क्वेश्चन जनरली हर एक स्कूल की फर्स्ट एग्जामिनेशन में होता है, तो बहुत अच्छी तरह से तैयार कीजिएगा। राइट अबाउट डाल्टन्स एटॉमिक थियरी। मैं साइंटिस्ट को है ना डीजे बोलता हूँ। डीजे इसलिए बोलता हूँ कि उसका पूरा नाम है जॉन डाल्टन। क्या नाम है? जॉन डाल्टन, इसलिए उनको डीजे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डीजे, डाल्टन जॉन। मैंने नाम क्यों डीजे रखा उसका रीजन मैं आपको प्रॉपर देता हूँ। आप पूरा केमिस्ट्री पढ़ लोगे, लेकिन जॉन डाल्टन एक ऐसा साइंटिस्ट है जिसका खुद का कोई इन्वेंशन नहीं है। किसी ने कोई थियरी कंसेप्ट एक्सप्रेस किया, बस उसको वहां से खींच के अपने नाम पे प्रोड्यूस किया है। मैं ऐसा कह सकता हूं कि मैंने पीएचडी के नीचे तक, मतलब एमफिल तक केमिस्ट्री पढ़ा है, लेकिन अब तक इतना केमिस्ट्री डीप में जानने के बावजूद भी मुझे एक भी प्रिंसिपल ऐसा नहीं लगा जो प्रिंसिपल उन्होंने खोजा हो। किसी ने रिजल्ट दिया होगा, उस पर से उन्होंने बराबर प्रिंसिपल बना लिया होगा। इसलिए शुरुआत यहीं से हुई थी। द फर्स्ट एटॉमिक थियरी वाज गिवन बाय जॉन डाल्टन इन 1808। 1808 में जॉन डाल्टन ने पहली बार एटॉमिक थियरी दी थी। लेकिन आपको मैं सेकंड लेसन में पढ़ाऊंगा कि ये ऑलरेडी उनके बॉर्न से भी 1000 साल पहले लोग जानते थे। लेकिन साइंटिस्ट है, रिस्पेक्ट से आगे बढ़ते हैं। The first atomic theory was given by Dalton in 1808. उनकी थियरी ऐसी थी, atom is the ultimate particle of matter. Atom is the ultimate particle of matter. Actually, atom word आया कहां से, उसकी बात करता हूं। ग्रीक फिलोसोफर्स एंड अर्ली इंडियंस थे। मैं थोड़ा डीप में जाऊंगा क्योंकि आपको पता चले ये उनकी थियरी नहीं है। एक्चुअली इंडियन जो अर्ली इंडियंस थे, हमारे पूर्वज, और ग्रीक फिलोसोफर्स थे, उन्होंने मिलकर एक डेफिनेशन दी थी कि अगर आप कोई भी मैटर को कट करते जाओगे, तो उसमें से एक छोटा सा स्मॉलेस्ट पार्टिकल मिलेगा जिसको आप कट नहीं कर पाओगे। इट इज इनडिवाइजेबल। ओके, अर्ली इंडियंस और ग्रीक फिलोसोफर्स का मानना था कि मैटर का अगर हम डिवीजन करें तो लास्ट में अनडिवाइजेबल एक पार्टिकल मिलता है, और वो अनडिविजिबल पार्टिकल जो है वो एटम है। कहां से आया एटम वर्ड? एक्चुअली ग्रीक लैंग्वेज जो है ना, उस ग्रीक लैंग्वेज में जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, ओके, जेने भांगी नाखू, तोड़ी नाखू, भूक्को न करी नाखू, आવું न થઈ શકે, એ બધાને ગ્રીક લેંગ્વેજમાં કહેવાય એટોમિયો। શું કહેવાય? एटोमियो मीन्स अनडिवाइजेबल, अनब्रेकेबल। और एटोमियो पर से, ये ग्रीक वर्ड एटोमियो पर से इंग्लिश में नाम दिया गया उसको एटम। ओके, सो एटम वर्ड इज गिवन फ्रॉम एटोमियो मीनिंग इनडिवाइजेबल। दिस इज द नेम गिवन बाय ग्रीक फिलोसोफर्स एटोमियो। उन्होंने ऑलरेडी बता दिया था कि एटम इनडिविजिबल है आज से लगभग 1500 साल पहले। तो 1808 में उसका लिस्टिंग हुआ, नाम दिया गया साइंटिस्ट का जॉन डाल्टन, प्रिंसिपल तो वही, मतलब प्रिंसिपल वही, साइंटिस्ट नया। क्या था? एटम इज द अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर। अल्टीमेट का मतलब है द लास्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। इतना ही नहीं, 1808 में डाल्टन पब्लिश्ड a new system of chemical philosophy।
In 1808, Dalton published a new system of chemical philosophy in which he proposed the following. उन्होंने ये चीजें एक्सप्लेन की थी a new system of chemical philosophy में. कौन कौन सी चीजें? Let us see. पहली बात, मैटर कंसिस्ट ऑफ इनडिविजिबल एटम्स. मतलब मैटर जो है इनडिविजिबल छोटे छोटे पार्टिकल एटम का बना है. ओके. ऑल द एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज. एक ही एलिमेंट के सभी एटम्स का प्रॉपर्टी आइडेंटिकल होता है, इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास. And atoms of different element differ in the mass. ये सीधी बात हुई ना. Ankit is Ankit and Hardik is Hardik. Ankit cannot be Hardik and Hardik cannot be Ankit. अगर एलिमेंट है तो सेम एलिमेंट के सभी एटम्स का क्वालिटी सेम होगा, मास सेम होगा, प्रॉपर्टी सेम होगा. लेकिन एक एलिमेंट के एटम की प्रॉपर्टी दूसरे एलिमेंट के एटम की प्रॉपर्टी से डिफरेंट होगी. एलिमेंट्स आर डिफरेंट, properties are different, masses are different. Okay, all the atoms of a given element have identical properties, including identical mass. Atoms of different element differ in mass. Atoms of different element differ in mass. Third thing, compounds are formed when atoms of different elements combine in a fixed ratio. Okay. Compounds are formed when atoms of different element combine in a fixed ratio. मतलब फिक्स रेशियो में डिफरेंट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन होते हैं तो कंपाउंड बनेगा. ओके. कंपाउंड्स आर फॉर्म व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन अ फिक्स रेशियो. कंबाइन इन अ फिक्स रेशियो. क्लियर? फोर्थ वन, chemical reactions involve recognition of atoms. Okay. Chemical reactions involve reorganization of atoms. These are neither created nor be destroyed. Okay. कोई भी ordinary chemical reaction हो उसमें atoms का rearrangement होता है, reorganization होता है, लेकिन एटम नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय. वो कभी क्रिएट नहीं हो सकता या फिर डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता. इतना याद रखना है. सो वी हैव गिवन डिफरेंट 5 पॉइंट्स फॉर डाल्टन्स एटॉमिक थियरी. याद रखना, केमिस्ट्री हो या मैथ्स हो, इतना याद रखना कि जिस साइंटिस्ट का नाम डी से शुरू होता है, डी, वो ऑलवेज कॉपी पेस्ट वाला होता है. ओके. कौन होता है? कॉपी पेस्ट वाला होता है. ओके. तो डी मॉर्गन मैथ्स का साइंटिस्ट है. आप उसका रिसर्च करो, कोई अच्छे मैथमेटिशियन को पूछो तो उसने जो रूल्स दिए थे सेट के, वो कहीं से कॉपी किए थे. दमित्री मेंडेलीव, उसने लॉथरमेयर साइंटिस्ट के आधे टेबल को कॉपी करके पूरा किया था. दमित्री मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल वाले, बराबर. वैसे जॉन डाल्टन 1808 में फर्स्ट एटॉमिक थियरी दी थी. थियरी ऐसी है, एटम इज द अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर. ग्रीक वर्ड एटोमियो से आया एटम, जिसका अर्थ है इनडिविजिबल. उन्होंने 1808 में लॉन्च किया था अ न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलोसॉफी. व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट? मैटर कंसिस्ट ऑफ indivisible atoms. Second, atoms of same elements are same and atoms of different elements are different in mass and property. Compounds are formed when atoms of different elements combine in a fixed ratio. Atoms of different elements combine in a fixed ratio. And last one, chemical reactions involve reorganization of atom, rearrangement of atom. These are neither be created nor be destroyed during a chemical reaction. Okay. तो बच्चों आज हमने 3 लॉस पढ़े हैं. फर्स्ट लॉ कौन सा था? गैल्यूसेक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम. सेकंड,
Avogadro's law, and third one, that is Dalton's atomic theory. Okay.